सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब ऐसा एक मामला हरियाणा के गुरुग्राम से सामने आया है। गुरुग्राम के राजीव चौक पर एक मॉडल के साथ अश्लील हरकत की गई है, जिसका वीडियो पीड़िता ने फोन पर रिकॉर्ड किया है। पीड़िता का आरोप है कि जब वो जयपुर से गुरुग्राम लौटी और गुरुग्राम के राजीव चौक पर उसने कैब बुक की। जब पीड़िता कैब का इंतजार कर रही थी तो एक व्यक्ति वहां तो पहले उसे घूरने लगा और फिर अश्लील हरकतें शुरू कर दी। आरोपी ने अपनी पैंट की जिप खोली और आपत्तिजनक व्यवहार शुरू कर दिया, जिसे मॉडल ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया है। मॉडल ने अपने कैब ड्राइवर को कई बार कॉल किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला, जिसके बाद मॉडल ने दूसरी कैब बुक की और वहां से चली गई। पीड़िता ने वीडियो में बताया कि उसने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम और महिला हेल्पलाइन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद उसने पुलिस स्टेशन का नंबर ढूंढकर अपनी आपत्ति बताई, लेकिन पुलिस ने भी उसकी मदद नहीं की। जिसके बाद मॉडल ने वीडियो वायरल कर गुरुग्राम पुलिस को टैग किया, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने फिलहाल केस दर्ज कर लिया है, आरोपी की तलाश में जुट गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। तो ये पूरा मामला हरियाणा के गुरुग्राम का बताया जाता है, जहां पुलिस ने अब ये पूरा मामला दर्ज कर लिया है। Something very strange happened to me at Rajiv Chowk, Gurugram. I was returning from Jaipur to Gurugram and my bus dropped me at the Rajiv Chowk. And while I was waiting for the cab, I noticed a man came around me. He was circling and he was constantly staring at me. Initially, I just ignored like the others do. But then I noticed that his pant zip was unzipped. And he literally kept staring and started in front of me, and he was very aware of what he was doing. He was just making me feel very uncomfortable, and I felt very disgusted. And I don't know about these cabs and all. I initially booked a cab. I was waiting for the driver. I called him many times, but he wasn't answering my call, and I had to book the another ride just to avoid this creep man and that situation. Initially I froze. I didn't record. I didn't hit him. And people say you could have taken some actions, you could have hit him or maybe shouted at him, but they don't understand what really goes through that girl's mind in that moment. And you know, reactions go viral faster than the real truth, and people really judge, they don't help. And I really don't want it to be that next viral video girl. I just wanted to be safe. So as soon as my cab arrived, I reached home. I tweeted everything. I posted the video on the Twitter, and I tagged Gurugram police, government and the women helpline. But there was no response, not even an automated message. People started giving me that random helpline numbers. I also tried 1090, but nobody answered. The call disconnected. Then I searched some numbers on Google and I called them, and I said I want to lodge an FIR or something. Then they said, when this incident happened, I said it happened. You know, this happened at 11 in the morning. Can you believe that? And they said, you have to come to the Thana for the FIR and all. We can't register your complaint online. I mean, what is this? Something mishappening at that moment. Like, we should go to the Thana to lodge the complaint. We can't get any online help or nothing like this. I felt very disgusted. And I'm also really making this video not to get any kind of attention. I just want me to be heard. Like, why is no response from the government or from these sites? And I also don't know about these apps that promise us to provide safety, that Ola and Uber. Why your drivers kept ignoring our calls? Like, why do they even take the booking if they're not? तो ये लड़की, मुतासरा लड़की मॉडल, जो अपनी आपबीती बता रही थी कि इसके साथ क्या कुछ हुआ है और किस तरह से कार्रवाई के नाम पर अब पुलिस ने केस दर्ज किया है। लेकिन अभी जो मुलजिम है वो एक तरह से गिरफ्त से बाहर है और इसकी तलाश की जा रही है। धर्मवीर, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
धर्मवीर शर्मा, क्या कुछ ये पूरा मामला है और अब तक कार्रवाई के नाम पर, क्योंकि पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया लेकिन अब तक जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए, जो ये युवती है ये अपने आप को जयपुर की बता रही है और ये गुरुग्राम में किसी काम से आई थी। जब ये राजीव चौक पर इंतजार कर रही थी अपनी कैब का, तभी एक युवक ने इनकी तरफ देख करके अश्लील इशारे किए और उसके बाद इस युवती ने उस युवक की जो फोटो थी वो अपने मोबाइल में कैप्चर कर ली और उसके बाद से ऑनलाइन जो शिकायत है वो गुरुग्राम पुलिस को दी। गुरुग्राम पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है सिविल लाइन थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है क्योंकि राजीव चौक पर काफी सारे सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, तो गुरुग्राम पुलिस अब सभी कैमरों की जो फुटेज है उसको खंगाल रही है और साथ ही जो युवती है पीड़ित है उससे भी बात कर रही है कि अगर वो उस सीसीटीवी फुटेज में देख करके किसी को पहचान सकती होगी तो उसको पहचाना जाएगा। लेकिन फिलहाल तक की बात यह है कि किसी को गिरफ्तारी हुई नहीं है, मामला दर्ज कर दिया गया है, तो गुरुग्राम पुलिस इस आरोपी युवक की तलाश कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, पुलिस हालांकि कार्रवाई कर रही है, केस दर्ज कर लिया गया है और इस अश्लील हरकत के बाद पुलिस अब हरकत में आई है और इस शख्स की तलाश की जा रही है।